जय हिंद। जय हिंद डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन द केमिस्ट क्लासेस, वीडियो क्लासेस में आप लोगों का फिर स्वागत है। हमने डियर स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो 12th क्लास के इस टॉपिक में हमने डी एंड एब्लोक, इंट्रोडक्शन ऑफ द डी एंड एब्लोक की 2 पार्ट्स की स्टडी की थी। अब थर्ड पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट इन ए डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इन द 12th क्लास, लेसन नंबर 8। डिस्कशन प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने फर्स्ट 2 लेसन में हमने स्टडी किया था, फर्स्ट 2 पार्ट्स में। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, उसका डिस्कशन किया था। लेट्स टुडे वी कैन डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। So first, what is the atomic radius? We can discuss the periodic table lessons, modern periodic table lesson, and different properties of elements discussed in the 11th class. So atomic radius, first property of the atomic radius and ionic radius of element. What is the atomic radius? We can define it is the nucleus of the atom and outermost cell, valence cell and outermost cell. जो outermost cell है, it's more known as valence cell. valence cell किससे consist होता है? valence cell consists by ns np orbitals, maximum 8 इलेक्ट्रॉन present होते हैं outermost cell valence cell. तो distance between outermost cell and nucleus it's known as radius. So 4 type, different type of atomic radius since 4 type. First, covalent radius. Second, ionic radius. Third, metallic radius. And fourth, van der Waals radius. The radius of one single atom does not be measured. हम single atom as a single atom इसका हम रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. कोवलेंट रेडियस फॉर एटम, आयनिक रेडियस फॉर कैटाइन एंड एनाइन, metric radius metal atom, and van der Waals for molecules. van der Waals radius molecules के लिए होता है. तो when 4 different radius measured by the 2 atom, 2 cations, 2 anions, 2 metric atoms are combined to each other. 2 atoms, 2 cations, nucleus. Distance between both nucleus, it's known as internuclear distance. Internuclear distance. The half of the internuclear distance is known as radius. किसी भी cations, neutral atoms, metal ion, metal atoms, 2 atoms को combine करते हैं by bonding. 2 nucleus का डिफरेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. तो रेडियस मीन्स हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. एज एग्जांपल, कार्बन सिंगल 154 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 77 पिकोमीटर. एज क्लोरीन 99 पिकोमीटर. कोवेलेंट रेडियस कैटायन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तब हमारे पास रेडियस प्राप्त होती है. What is the factor affecting on the radius in periodic table? 3 factors. First, effective nuclear charge. Effective nuclear charge means the
number of proton in nucleus, number of proton in nucleus. So effective nuclear charge, the strength of the attraction strength of the nucleus towards to valence shell electron. न्यूक्लियस की वह स्ट्रेंथ पावर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस है. तो न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. तो स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस विच अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. That known as effective nuclear charge. That known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge increase with increased atomic number in both period and group. Effective nuclear charge increase with increased atomic number both in periodic table, period and groups. यदि हम periods में left to right चलते हैं, periods and group, left to right and up to down. Both have effective nuclear charge increases. ये increase होता है. ये first factor है which affect the decrease the atomic radius. Effective nuclear charge के increase होने से atomic radius क्या होती है? Decrease होती है. Atomic radius क्या होगी? Decrease होगी. Second, group और periods में effective nuclear charge increase होगा. तो effective nuclear charge means the strength of the attraction power of the nucleus of an atom which attract the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टू न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस की वह स्ट्रेंथ पॉजिटिव पावर जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी अट्रैक्शन पावर को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर इन पीरियड एंड ग्रुप. ग्रुप और पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है. सेकेंड फैक्टर, नंबर ऑफ सेल. Number of cell. So periods have a same cell and group cell are increase. Periods के अंदर सेम सेल होते हैं, लेकिन ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, सीडलिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट और सीडलिंग इफेक्ट. सीडलिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड सीडलिंग इफेक्ट. सीडलिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? इट मीन्स क्या है? एट द न्यूक्लियस नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल, इट इज वैलेंस सेल. Valence cell, these are inner orbital. Inner orbital means क्या है? When electrons fill up in the d and f orbital, electron d and f orbital में fill up होते हैं. Electrons are fill up in d and f orbital. तो d and f orbital are preceding cell from the valence cell. Valence cell से अंदर की तरफ जो shell present होते हैं d and f orbital. These electrons are present between the इनर सेल. इनर सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. तो वैलेंस सेल अट्रैक्ट द बाय द न्यूक्लियस अट्रैक्शन पावर जब सिंगल एटम होते हैं. जब डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन हैव रिपेल ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्सन फॉर द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किससे अट्रैक्ट होते हैं? न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं. तो दीज इलेक्ट्रॉन आर प्रोटेक्ट, दीज इलेक्ट्रॉन आर प्रोटेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करते हैं किससे? किसको? वैलेंस सेल को फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस सेल. डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के कारण वैलेंस सेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है. So these are electrons are move from outer side. Electron density move from outer side. Effective nuclear charge decrease the atomic radius. In screening effect, the increase the atomic radius.
तो 3 more factors are affecting on the atomic radius in the periods and group of the S block, P block and D block and F block. तो एटॉमिक रेडियस पर जिन फैक्टर्स का अप्लाई होता है 3 फैक्टर्स होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल एंड थर्ड होता है सिडलिंग इफेक्ट। इस 3 फैक्टर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। इन दिस लेसन वी कैन डिस्कस ऑफ द atomic radius in period and groups on the d block element. What is the effect of the factor on the radius of atom in the d and f block element? So first we can discuss the atomic radius of d orbital electrons. d orbital electrons कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? Explanation of the atomic radius. We represent first group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन नियरेस्ट पॉसिबल इनर्ट गैस आर्गन 3d1 4s2, 3d2 4s2, 33 4s2, 35 4s1, 35 4s2, 36 4s2, 37 4s2, 38 4s2, 3010 4s1, 3010 4s2। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron in d orbital. d orbital number of unpaired electron 1 2 3 4 5 5 4 3 2 0 0 ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो फर्स्ट क्या है? ग्रुप 3 2 7 atomic radius 144, 132, 130, 126, 126, 126, 126, 127, 132, 138 पिकोमीटर। तो फर्स्ट क्या है? रेडियस डिक्रीज हो रहा है 3 to 7 डिक्रीज, फिर सिमिलरिटी आती है सेम एंड स्लाइटली इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है। क्यों होता है इसका कारण? इसका कारण मेन कारण क्या है? इन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर फिलअप इन अनपेयर्ड कंडीशन। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में फिलअप होते हैं। दे आर लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है, इसलिए साइज डिक्रीज होता है। देन ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन आर पेयरिंग इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। 9, 11 एंड 12 ग्रुप में D10 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के कारण इसमें क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज स्लाइटली इंक्रीज होता है। इस तरह से डी ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट इन ए horizontal way which have a irregular changes in atomic radius, first which decrease after then similarity and then slightly increase। इस तरह से हम इस चीज को डिस्कशन करते हैं।